I can call any function dynamically. I can invoke any function dynamically. I heard Tapan is having one class, is having one function called XYZ. Uncle is having one class, is having a function called YZ. He's having a function called X. Look at delegate baby. Delegate is independent to class. One delegate का object can have a reference of, can have a function reference of any class. It means object of that class. If I say object of this class, class ABS is having three functions. If I create an object of ABS type, then this object only can call the function of this class. But if I say delegate object, no, I cannot say today delegate is the keyword. It is basically what? Class. It is a shell class inherit from multicast delegate. So when to use delegate? Why delegate is made? I know why delegate is made. Why delegate is made? By one delegate object, I can have function reference, not entire class reference. So I can go for achieving encapsulation and proper abstraction model. I can only call those functions which are required to me. But when to use delegate? In project scenario, first of all, delegate object can have association with any class. It means the object of delegate type can have a function reference of any class. He is a delegate, is of his own team. He is a delegate of your team also. He is the same delegate for uncle team also, because he is a project manager. He has responsibility to look up his own team, and also I'm giving some extra responsibility to look up also other teams. So one delegate can bind to multiple classes to achieve a dynamic method invocation. But this is 0 to 3 years experience, not 3+. So if you are 2009 or 8 pass or 10 pass out, you can go like this. By one delegate object, I can have association with any class. I can achieve dynamic method invocation. If you go to a Mesden site, he says rule 1, when to use delegate. When you want to go for calling any function dynamically. As in the college level, this examination is going on. When the third person comes in the college, he has really got a right to go to any room and to check what a student is doing in that examination hall. उसे क्या बोलते हैं? Flying square क्या होता है? Invigilators. Yes. He can go to any room and can check. He can have any room reference. And room is basically function of that college. He can go to any building of that college and checks what students are doing in that examination hall. He has got a right. So delegate is made for achieving a dynamic method invocation. Rule 1. But not basically appreciable if you go for 2+ experience or 4+ experience. It's good for 0 to 3 only. As a fresher, go till maximum 2009 pass out. She can say maximum 2009. She's an 11 girl, she can also spell. But if you have 7 pass out, 8 pass out, not appropriate to go. आपको second rule पढ़ना पड़ेगा. तो अभी देख लो प्रोग्राम, बच्चे वाले प्रोग्राम. हम एक डेलीगेट के ऑब्जेक्ट से किसी भी क्लास के फंक्शन का रेफरेंस रख सकते हैं. तो बेटे डेलीगेट एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट में उसी क्लास का रेफरेंस होगा, इसलिए उस ऑब्जेक्ट से केवल उसी क्लास का वो फंक्शन केवल कॉल होगा. यहाँ पढ़ना पूरी कहानी लिखी. ओनली MSDN, डोंट रेफर एनी लिंक्स. जब यहाँ सबका फंडा हो जाए क्लियर, then you can refer other links for getting more knowledge. अब बच्चे वाले प्रोग्राम में देख लो. पूछेगा हाउ तो दिखा दो फिर. यूजिंग सिस्टम.
आज कोई प्रोग्राम नहीं, बस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना है, नेक्स्ट वीक से प्रोग्रामिंग करें। ये क्लास है, क्लास कोई सेपरेट क्लास है। और हमने क्या करा बेटे, एक क्लास बनाई, क्लास सी इन्वेस्टिगेटर, कोई नाम दे दो उसको। और इस आई को हमने एक डेलीगेट दे दिया। वो क्या दे दिया? पावर दे दिया। ही इज माई डेलीगेट। सो फॉर मनमोहन सिंह, चिदम्बरम इज बट वन काइंड ऑफ डेलीगेट एंड कपिल सिंह इज वन काइंड ऑफ डेलीगेट। फॉर सोनिया मनमोहन। सो मनमोहन सिंह है नहीं, सोनिया। सुन रहे हैं सरदार जी? ठीक है, बेचारा रिमोट कंट्रोल बना हुआ है बेचारा। वास्तव में हुज प्राइम मिनिस्टर? सोनिया गांधी। वो वर्चुअल फंक्शन है। उसको हिट कौन करता है? वो सोनिया गांधी। रेड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वहां बेस्ड है। इज ए म्यूट मैन। अरे एक लड़का था तुम्हारे चंडीगढ़ से, अरे सर आगे दिखा मनमोहन सिंह चंडीगढ़, सही करूँगा। अरे इतना बंदा अच्छा है, क्यों इनके चक्कर में आके फंस गया? इज ए मैन ऑफ नॉलेज, मैन ऑफ डिसिप्लिन, मैन ऑफ एवरीथिंग, क्यों इनके चक्कर में जाके फंसा हुआ है? सारे पावर है, सब कुछ इसके हाथ में है, और सारा काम कोई और कर रहा है। सीधा जीनियस है यार, इसको वही बंदा था जिस दिन जाके डिफाइन किया था। आज बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आपको करना था, इस चीजों से हट के करो। आज आमिर खान कर रहा है कि नहीं? आप बाहर से सपोर्ट करो, इनके साथ करोगे तो सारे नोट के रख देंगे आपको। उनकी बातें करके फायदा कुछ नहीं। अभी इसके पास डेटा है, डेटा वाले को एग्जाम दे रहा है, कुछ लिख रहा है, हमें राइट? अरे बोलो, इसके पास भी क्या है? बोलो, डेटा है, कुछ लिख, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है बेटे, डेटा है। अब यहां पे हमने क्या करा बेटे, यहां पे इंडिपेंडेंट टू ऑल दी क्लास, ये बोलो क्या बना दिया? डेलीगेट बना दिया। और क्लास आई किसको यूज करेगा? बोलो, डेलीगेट। और वो बंदा जो आया है चेक करने के लिए, वो और कुछ नहीं चेक करेगा, वो तुम्हारे काम की चीज को चेक करेगा, जो पावर दी है, जिसको पावर मिली है, वो वही चीज यूज चेक करेगा जो उसे कंसर्न का चीज है। क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट, तो थर्ड पार्टी शुड बी देयर। ये बना दी डेलीगेट। ऑथोरिटी किसको पॉइंट करेगा? डेटा फंक्शन को। उसका डेटा टाइप बोलो क्या है? डी बना दिया, कोई नाम दे दिया, डी वो दे दिया, PW दे दिया। अभी ये तुमको लग रहा है डेलीगेट का नाम है, बट बेसिकली बाद में क्या बनेगा? बोलो क्लास बनेगा, और क्लास में पहले क्या होगा? स्टूडेंट होगा, उसके बाद बेस क्लास कौन होगा? मल्टी क्लास। चलो अब अंकल आप यहाँ जाइए, अब मेन में आ गए, यहाँ बच्चे वाले काम देख दो, कंसोल डॉट राइट लाइन। सॉरी, हो गया? ज्यादा हो गया ना? आप देखो, ठीक है?
सेपरेट क्लास है और उसको मैनेजमेंट ने डेलीगेट दे दी, पावर दे दी। बट पावर भी ऐसा है, वो कॉन्सेप्ट चीज़ों के लिए बना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैसेज चेंज करो। अगर ये बंदा क्लास का बना लेगा ऑब्जेक्ट, हर चीज चेक कर लेगा, अरे बोलिए यार, तो इसको पावर नहीं कि क्लास का बनाना है ऑब्जेक्ट। इसको बस पावर दी गई है ओनली फॉर डेलीगेट टू ओनली कॉल सर्टेन फंक्शंस। सुना कि नहीं? ये किसी से फालतू बातें बस नहीं कर सकता, उसको मिला चेक करने के लिए बस चेक करे, कोई फालतू बातें नहीं कर सकता। इस बंदे ने क्या करा, पीडब्ल्यू जहां पीडब्ल्यू लिखा पता है क्लास का नाम, अरे बोलो यार। और शुरू में क्या लगता है, पता नहीं ड्रामा है क्या, और लिखा पी बोल क्या हो गया ऑब्जेक्ट। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सिल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, अरे बोलो यार, न्यू वर्ड पीडब्ल्यू। अब इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में किसी भी क्लास का फंक्शन का रेफरेंस हो सकता है। तो डेलीगेट इज टू अचीव फॉर डायनामिक मेथड इन्वोकेशन। याद कर लो, एक ऑब्जेक्ट से कभी डायनामिक मेथड इन्वोकेशन नहीं हो सकता। क्यों? उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या बोलो डिसाइडेड है, और उस ऑब्जेक्ट से वही फंक्शन कॉल होंगे जो उस क्लास की क्या बोलो बिलोंग है। अब यहाँ पे उसको मैंने कह दिया सर आप बस ये वाला चेक करोगे और आपको किसी से कुछ पर्सनल बातें नहीं पूछनी। तो पी स्पेस वर्ड P1 न्यू वर्ड, ठीक है, उसको दे दिया P1 डॉट बोलो कौन, हो गया जी, अरे हो गया। और यहाँ क्या दे दिया बोलो, नहीं यहाँ नहीं रहेगा, हो गया। और फिर दे दिया, अभी बेटा मल्टीकास्ट डेलीगेट नहीं किया, हम चाहते तो एक ही डेलीगेट से मल्टीपल फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और वो करेंगे इस क्लास में। फिर दो डेलीगेट बना दिया, ठीक है, सही, मतलब एक ही डेलीगेट का दो ऑब्जेक्ट बना दिया, समझो कि नहीं? दो डेलीगेट नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट का, एक ही डेलीगेट का दो ऑब्जेक्ट। और यहाँ दे दिया बोलो कौन, ये P2 हो गया, सॉरी P1 हो गया, ठीक तो था। और देखिए अंकल, अब ये बंदा और ये बंदा दोनों ऑब्जेक्ट के पास क्या बोलो किसी भी क्लास का। अब देखो बेटे, मैं बच्चों को समझाता हूँ, सब बच्चे बैठे हैं, क्लास ए, ठीक है, देखो यहाँ क्लास ए, यह एक फंक्शन है, एक फंक्शन, ये लिखना मत प्लीज, ये एक फंक्शन है, सुनना है मेरी बात। अगर बेटे मैंने यहाँ पे लिख दिया A स्पेस A1 न्यू A और A स्पेस A2 न्यू 1, अब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के हैं, अरे बोलो यार, ऊपर देखो, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के हैं, बट बालक इस ऑब्जेक्ट के पास किसी और क्लास के फंक्शन का रेफरेंस है, अरे बोलो, और इस ऑब्जेक्ट के पास किसी और क्लास के फंक्शन का रेफरेंस है। यहाँ पे किसका दे दो रेफरेंस, A1 न्यू 1, नहीं ऐसा नहीं, अरे बोलो, एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट और दोनों ऑब्जेक्ट के पास एक ही क्लास का रेफरेंस है। देखो यहाँ, देखो ना यहाँ पे, अरे नहीं ऐसा नहीं, A1 और A2 दोनों ऑब्जेक्ट हैं किस क्लास के, एक है, इसलिए A1 एक क्लास के सारे फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और बेटे यहाँ देख, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है P, इसके पास एक क्लास के फंक्शन का रेफरेंस है, अरे बोलो यार, और P1 के पास किसी और क्लास के फंक्शन का बोलो क्या है, रेफरेंस है, और दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास की बिलोंगिंग, नहीं ऐसा, नहीं ऐसा, नहीं ऐसा, नहीं ऐसा। इस ऑब्जेक्ट की जो टाइप है
इस ऑब्जेक्ट की जो टाइप है वो बेटा डिसाइडेड है, और इस ऑब्जेक्ट की जो टाइप है वो क्या बोलो डिसाइडेड है। दोनों ऑब्जेक्ट अगर नाक रगड़ ले दूसरे क्लास का फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, इसलिए डायनामिक नहीं। उस दिन उस कॉलेज का कोई मास्टर कुछ नहीं कर सकता, क्यों स्टैटिक है। अरे बोलो यार, जो बाहर से हैं उनके पास डायनामिक इंफॉर्मेशन। अंडा मस्त हो गया। तो हाउ डेलीगेट अचीव्स डायनामिक मेथड इन्वोकेशन, ये वर्ड लिखा डायनामिकली इन्वोक हो रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट तपन दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के हैं, पर दोनों जो कॉल कर रहे हैं एक क्लास के फंक्शन नहीं कॉल कर रहे हैं, दो डिफरेंट क्लास। इससे आपका अचीव हो गया डायनामिक मेथड इन्वोकेशन। आप टॉपिक का नाम दे सकते हो। स्पेलिंग को छोड़ो, तो अचीव डायनामिक मेथड याद नहीं रहेगा, लिख लो। इसके 3 केस हैं तपन, और अगला केस 5 इयर्स तक का है, और थर्ड केस 10 का एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ाया है शंकर वाले बैच में। उसके लिए आप 2 क्लास कॉल वेट करें, जल्दी करो फटाफट। मतलब बेटे इस प्रोग्राम से इंपॉर्टेंट श्रीवास्तव ये वाला प्रोग्राम है जो मैंने हटा दिया। एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट टाइप क्या बोलो फिक्स है। बोलो यार इससे दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और यहाँ भी एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के पास 2 डिफरेंट क्लास के बोलो क्या फंक्शन का रेफरेंस है। इसी क्या बोलो डायनामिकली है। बोलो यार उस दिन उस कॉलेज का मास्टर कुछ नहीं कर सकते। जल्दी फटाफट लिखो। पर एक मिनट जाओ, बिफोर राइटिंग आप इसको प्रोग्राम चला के देख लो। डी डायनामिक मेथड डॉट सी एस कमांड प्रॉम्प्ट cd/325 csc dm डॉट सी एस और क्लियर। अरे बोलो नहीं यार सर, अब ठीक से लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं। आया समझ में? अगर आप ये प्रोग्राम लिख दोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो पीछे लिखा था मैंने क्लास ए और उसके 2 ऑब्जेक्ट, और दोनों की ऑब्जेक्ट क्या बोलो टाइप फिक्स है। अरे बोलो यार, और दोनों ऑब्जेक्ट अगर नाक रगड़ ले कुछ भी कर ले दूसरे क्लास का फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। वो स्टैटिकली बाय नेचर, ये क्या डायनामिकली बाय नेचर। तो डेलीगेट से तुम क्या अचीव करते हो? डायनामिकली नेचर अचीव करते हो। आप यहां तक बोल दो अच्छा है, इसके बाद का अगर आप बोलोगे इट मेक्स ए ग्रेट इंप्रेशन अबाउट यू। ये किसी का बच्चा बोल कर आते हैं प्रोसेस में, तो आप बोल दो इट मेक्स ए साउंड इंप्रेशन अबाउट यू। फिर नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसको पहले ही बोल दिया कि भाई आपको कल आना है और कल बच्चों का एग्जामिनेशन है, एमसीए है, बीटेक है, जो भी है, आपकी ये टाइमिंग, आपकी ये जगह है, आप ये जहाँ जा सकते हो। पर वो रन टाइम में कहीं भी जा सकता है जो उसको मिला है।
उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है। डेलीगेट से क्या पावर ऑफ अटॉर्नी प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे बोलो यार। मैच होना चाहिए। In the other example, the water report. In the other example, object called A1 and A2, both are pointing same memory address called what? ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही बेटे मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए हम इस दो ऑब्जेक्ट से एक ही क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं। पर डेलीगेट के बेटे पहले ऑब्जेक्ट में किसी और क्लास के फंक्शन का मेमोरी एड्रेस है, और डेलीगेट के सेकंड ऑब्जेक्ट में किसी और क्लास के फंक्शन का बोलो क्या है, मेमोरी एड्रेस। ये दोनों क्या होगा, स्टैटिक बाई नेचर। ये अर्ली हो गया, अर्ली बोल सकते हैं। अर्ली बाइंडिंग घर में शादी होती है, एक बंदे को सारा काम दिया जाता है, वो पूरा डायनामिकली है। कभी यहाँ दौड़ता है, कभी वहाँ दौड़ता है, कभी वहाँ दौड़ता है, सारे काम कर दौड़ के करता है। और वो उसी शादी में एक बंदे को एक काम प्रोवाइड कर दिया गया, आप बस यहीं पे रहो, वो अर्ली बाइंडिंग है। तो डेलीगेट से यू कैन अचीव डायनामिक मेथड इन्वोकेशन। जल्दी करोगे तपन? ये प्रोग्राम रियल नहीं है, बस आप सुना कि नहीं, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। अब ये नहीं लिखोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, प्लीज ध्यान रखना। So don't try to miss next week class. It's very important by its second use of delegate and third use of delegate. आपके पास 3 delegate का यूज होना चाहिए। और सेकंड यूज कहाँ है तपन? फॉर मेकिंग ए इवेंट। और थर्ड यूज क्या है? फॉर असिंक्रोनस कॉल। So both the functions are same. डार्लिंग कुछ भी दे दो, डेटा 1 डेटा 2। थर्ड क्या बताओ? थर्ड केस बाई सेकंड
ठीक है। You can make an event, or third, you can use asynchronous callback. उसके असर तो उसे किसी में मतलब बात कर तो 10+5 के ऊपर चले जाओगे तो आ जाएगा आपका asynchronous callback. सर आपने एक चीज़ पिछले क्लास में कहा था कि why delegate is inherited from multi-class delegate. वही बताएंगे ना ये उसमें थर्ड वाले में asynchronous callback. ठीक है, चलो आज क्लास लाइट रहने दो. It is your.